کی شہرک ہے، اور جب بات شہرک تک پہنچ جاتی ہے تو ہر آدمی لبیک کہہ کے جہاد کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج اس وقت پاکستانی پوری قوم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اپنی ریاست کے اشارے کی منتظر ہے، اپنی افواج پاکستان کے اشارے کی منتظر ہے کہ کب وہ کال دیں اور کب یہ نوجوان، یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں، یہ سب کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ کشمیریوں کے حق میں، اور بتائیں گے پوری دنیا کو کہ کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ کشمیر سے ایک صدا آتی ہے، کشمیر سے ایک صدا آتی ہے کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی، ابھی بھی وقت ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ کشمیری نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ابھی بھی وقت ہے۔ مودی سدھر جاؤ، اقوام متحدہ تم نے جو اپنی قرارداد پیش کی تھی کشمیر کے حوالے پر اس پہ قائم رہو، اپنی تمام افواج کو کشمیر میں پہنچاؤ، وہاں سے کرفیو ہٹواؤ، یہ اقوام متحدہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو اس ایشو کو ریزالو کرانا ہے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیری قوم زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آج یہاں کراچی کے اس مشہور و معروف مقام کراچی پریس کلب پر موجود ہیں، اور یہاں پر ہومیوپیتھک کے طلباء، اساتذہ اور ہومیوپیتھک سے تعلق رکھنے والی مختلف تنظیموں کی جانب سے کشمیر کے حوالے سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں تمام طلباء و طالبات بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہیں۔ یہاں مجھے کچھ ایک ہومیوپیتھک کالج کی طالبات نظر آئیں، تو میں نے سوچا کہ میں ان سے بات چیت کروں، کچھ جو سوالات میرے ذہن میں ہیں وہ ان کے سامنے رکھوں، تاکہ نوجوان نسل کہ جسے کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ تقریباً گزشتہ 20 سالوں تک ہمیں یہ بہت بڑا ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہمارے 60% لوگوں کا تعلق نوجوان طبقے سے ہے، یعنی نوجوان نسل ہے ایک، تو ہمیں اس 15-20 سالوں میں بہت کچھ حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ سرکل جب گھومے گا، جسے جنریشن سرکل کہتے ہیں، تو پھر نوجوانوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو آج ہم یہاں کچھ طالبات کے ساتھ موجود ہیں جن کو میں نے اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ مجھ سے کشمیر کے حوالے سے بات کریں، تو ہم ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کہ آپ یہاں کشمیر کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں کیا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں، کشمیر کا ایشو کیا ہے جہاں تک آپ کی نالج میں ہے، اور آپ کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتی ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح یہ جو مظاہرہ ہے، ٹھیک ہے یہ بھی ایک اچھی کوشش ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد انسٹیٹیوٹ سے ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ جو ہم ریلی کے لیے آئے ہیں، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور یہ ہمارا جذبہ ہے جو ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہم ہر پل ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس وقت، وہ تقریباً ساری یا تو فیس بک پر ہے یا ٹک ٹاک پر ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کشمیر ہے، جو مقبوضہ کشمیر ہے، اسے آزاد کروائیں گے، تو کیا ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اپنی اصلاح کے بعد اگر ہم اپنی اصلاح کر پائے تو پھر ہم معاملات دوسری طرف لے کے جائیں گے، کشمیر کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس وقت نوجوان جو ہے اسے تربیت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس چیز کی تربیت کی ضرورت ہے؟ السلام علیکم، میں محمد انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھتی ہوں، اینڈ میں کشمیر کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں ہماری تربیت میں اس میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ ہم نے ریلی نکالی، ویری گڈ ریلی ہے، ٹھیک ہے، کشمیریوں کے ہم ساتھ ہیں، بٹ اس میں یہ بات بھی ہے، یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ مودی کتا ہے، بٹ یہ بھی ہماری تربیت کے خلاف ہے کہ ایک اسٹوڈنٹس کو اور ایک تعلیم حاصل کرنے والے ادارے ایک گالی اور سر عام بک رہے ہیں، بٹ یہ بات ہمارے کو زیب نہیں دیتی، ہمیں ان سے صلح کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں ان سے صلح کرنی چاہیے، ان کے ساتھ رہنا چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے۔
और ऐसे गाड़ी करके हम अपनी तहजीब को खुद उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि इस वक्त ज़ाहिर है आवाम तो सड़कों पर है और पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में लोग अपने कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती कर रहे हैं, और बल्कि मुसलमानों के अलावा ह्यूमन राइट्स के हवाले से पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, तमाम ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि कश्मीर के हवाले से हुकूमत जो अब तक हुकूमत का जो किरदार नज़र आया है, जो भी आपके सामने आप खबरों में देखती रहती होंगी, तो आप उससे मुतमईन हैं या उससे मज़ीद कुछ आगे बढ़कर करने की कुछ ज़रूरत है? मैं चाहती हूँ कि हुकूमत को जो है ना मज़ीद इस चीज़ पे जो है ना गौर करना चाहिए। वो सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं, उन्हें चाहिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा को राज़ी करें, आमादा करें, क्योंकि मेन मसला सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा का ही है। वो अगर सपोर्ट करेगी तो ही कश्मीर आज़ाद होगा, वरना कुछ भी करते रहें, रैली निकालते रहें, कुछ भी करते रहें, कश्मीर कभी भी आज़ाद नहीं होगा। और ये जो इमरान खान जो बैठा हुआ है, उसे चाहिए कि इस बात पर ज़रा गौर करें। ये अहम मसला है ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इंडिया का भी। जो कश्मीरी हमारे वहाँ हैं 49 डेज़ हो गए उन्हें वहाँ भूख प्यास से, अगर हम यहाँ एक दिन से बैठे तो हमें भूख लग रही है, तो हम उनके दर्द महसूस कर सकते हैं। तो चाहिए कि हुकूमत को सपोर्ट करें। वहाँ अगर खाना मैसर नहीं है तो खाना तो प्रोवाइड कर सकते हैं ना वो लोग, तो उन्हें चाहिए कि वो खाना प्रोवाइड करें वहाँ पे। बहुत शुक्रिया। हमारी नौजवान नस्ल में अल्हम्दुलिल्लाह जज्बे की कमी नहीं है, सलाहियत की कमी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हमें किस तरह पॉलिश करके उन्हें वो एंगल मुहैया करना है, वो ज़ाविया मुहैया करना है कि जिसके बुनियाद पे वो आगे जा सकें। इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी अवाम की उमंगें भर लाएंगी और इंशाअल्लाह कश्मीर जो है वो उनको अपना हक़ खुद आज़ादी हासिल होगा। बहुत शुक्रिया। कराची प्रेस क्लब से शहदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम अब्दुर्रब खान शाहिद है और सुगरा मेमोरियल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से ताल्लुक़ है। आज यहाँ पर हमारे होम्योपैथ्स मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोग जमा हुए हैं इज़हार यकजहती कश्मीर के सिलसिले में, और ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। हम ये समझते हैं कि ये मसला 1947 से चला आ रहा है और 1948 में यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक जो बात तय की गई थी, अगर उसी को सामने रखते हुए हम उस चीज़ को फोकस करें तो शायद नताइज बेहतर निकलें। हम एक नारा बुलंद करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन शायद इस नारे से हमारे कश्मीरी बहनों और भाइयों के लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो रही हैं। कश्मीर एक आज़ाद रियासत है। कश्मीर में कश्मीरी बहनें अपनी इज़्ज़तें और नामूसों की हिफाजत कर रही हैं। कश्मीर में वहाँ का नौजवान अपने खून से वहाँ की धरती को सेंच रहा है, तो कश्मीर पर हुकूमत भी कश्मीरियों का ही हक़ होना चाहिए। हाँ, 1947 के रेजोल्यूशन के मुताबिक अगर यूनाइटेड नेशन अक़वाम आलम, हम ये समझते हैं कि वो एक ऐसा इदारा है जो दुनिया में अमन का मंबा है, और आज उसकी क्रेडिबिलिटी पर एक सवालिया निशान सामने आ रहा है। सवालिया निशान ये है कि क्या वजह है कि हमारे मज़लूम कौमों पर, मज़लूमों पर जब जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म होता है तो यूनाइटेड नेशन सिर्फ करारदादों की हद तक महदूद रहता है, उससे आगे वो अपने करारदादों को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम रहता है। तो हम ये समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक ही कश्मीर का हल होना चाहिए और कश्मीरियों को ही कश्मीर मिलना चाहिए। कश्मीरियों को ही ये हासिल है वो कश्मीर पर अपनी हुकूमत कायम करें और उनको हक़ खुद इरादियत हासिल होना चाहिए। शुक्रिया जनाब। आज कराची प्रेस क्लब पे एक रैली मुनक्किद हुई। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल वर्ल्ड मुग़ल फेडरेशन के सदर मिर्ज़ा मकसूद बेग साहब। आइए इनसे कश्मीर की आज़ादी पर बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर में जो जुल्म और सितम हो रहा है, जो मोदी कुत्ता जुल्म करा रहा है, जो कर्फ्यू से हमारी माएँ बहनें और हमारे जो बच्चे वहाँ बिलग रहे हैं भूख से, प्यास से, दवाइयों के ना होने की वजह से, हमें इस पे बहुत बड़ा अफसोस है। और हम ये चाहते हैं कि अगर हमें हमारी हुकूमत वक्त हमें इजाज़त दे तो हम और हमारे साथ तमाम हमारे पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी जिहाद के लिए निकलने के लिए तैयार है और हम अपनी जानों के नजराने देंगे। और हम वो कौम है कि हमारी मौत भी शहादत है और हमें शहादत से कोई रोक नहीं सकता। आज हमारा खून खोलता है और हमें ये मजबूरन ये सब्र करना पड़ रहा है कि कुछ हुकूमती मामलात हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर हमें हुकूमत इजाज़त देती है तो इंशाअल्लाह ताला हम अनकरीब इंशाअल्लाह कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से
इंडियन फ़ौज का नेस्त व नबूद कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू। आज हम कराची प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स ने जो है वो आज एक रैली का प्रोग्राम रखा हुआ है। यहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स तमाम मौजूद हैं। कश्मीर की आज़ादी के हवाले से यहाँ पे एक रैली मुनक्किद की गई है। आइए हम यहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स से कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कश्मीर की आज़ादी के हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर तारिक है। मैं इस्लामिक होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन सिंध का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तमाम कम्युनिटी कश्मीर के लिए आवाज़ें बुलंद कर रही थी। होम्योपैथिक कम्युनिटी भी आज मुतहद होकर कश्मीर के लिए निकल आई है और हमारा नारा यही है कि हिंदुस्तान की फौज हिंदुस्तान कश्मीर से निकल जाए। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा हिस्सा रहेगा। कश्मीर हमारी शारक है और होम्योपैथिक बरादरी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान अवाम के साथ और कश्मीरी अवाम के साथ शामिल है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहते हैं कश्मीर की आज़ादी के हवाले से? मैं कमर रियाज के एडवोकेट, मैं अपने लॉयर्स विंग की तरफ से सपोर्ट के लिए और साथ देने के लिए आया हूँ। कश्मीर के बारे में हमें ये कहा गया कि 6.5 लाख फौज इससे पहले कश्मीरियों को उनके रायदही से रोकने के लिए वहाँ पे मौजूद थी, क्योंकि अब उनको 10 लाख फौज करनी पड़ गई है और उसके बावजूद भी उन्होंने कर्फ्यू लगाकर निहत्ते कश्मीरियों को घरों में बंद कर रखा है ताकि वो कश्मीरी बाहर निकल के अपना हक ना मांग लें या छीन न लें। इतने बुज़दिल फौज जो 10 लाख होने के बावजूद भी निहत्ते कश्मीरियों से डर रही है। हम उन निहत्ते कश्मीरियों के साथ रावल दस्ते की तरह इस वक्त भी मौजूद हैं और आइंदा भी रहेंगे। कश्मीर पाकिस्तान नामुकम्मल है कश्मीर के बगैर।